So here we are given that ABC are in AP, BCD are in GP. What we are given? Three terms A, B and C are in AP, arithmetic progressions. ABC are in AP, BCD are in GP. BCD, three terms B, C and D are in GP. Done. And also we are given that another three terms which are 1 upon C, 1 upon D and 1 upon E are in AP. These three terms are in AP. So prove that. क्या प्रूव करना है? Prove that, यहाँ पर लिख देते हैं, prove that three terms A, C and E are in GP. We have to prove these three terms A, C and E are in GP. Done. तो मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे? इफ यू वांट टू प्रूव A, C, E are in GP, what we have to prove? Middle term square, है ना? That means we have to prove middle term square, that is C square equal to first into third term, C square equal to AE. ये हमें प्रूव करना है. This we have to prove. Done. This is given. So let's start with the given. Total 3 given. ABC are in AP. So if ABC are in AP, we can say common difference will be constant. So B minus A equal to C minus B. Common difference between given three terms will be constant. So this will be equal to twice of B. What we can write? Twice of B, है ना? Minus B साइड आएगा तो B plus B equal to minus A साइड जाएगा तो A plus C. Twice of B equal to A plus C. So this one is a result number 1. We are given that A, B, C are in AP, and therefore we can say twice of B equal to A plus C. Is that clear? Now we are given that BCD are in GP. BCD are in GP. So if three terms are in GP, their common ratio will be constant. So it's a C by B equal to D by C. And therefore, what we can write? We can say C square, and cross multiply karo, C square equal to BD. This is result number 2. Understood? Now, again, third given data. What we are given? 1 upon C, 1 upon D and 1 upon E are in AP. So again, if the given terms are in AP, their common difference will be constant. So क्या होगा? It's the 1 upon D minus 1 upon C, है ना? This one minus this one, and this one minus this one. 1 upon E minus 1 upon D. Common difference will be constant. So what we can write? Twice of D, है ना? Minus 1 by D साइड आएगा तो 1 by D plus 1 by D. It's a twice of 1 upon D. So 2 by D equal to 1 upon E plus 1 upon C, है ना? ये E है और ये C है. अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है. This is E and this is C. Is that clear? So this one is the result number 3. इतना समझ में आ गया? Now अभी है ना, सबको उलट सुलट करना है. देखो, now from result 1, from this result 1, this twice of B equal to A plus C. Can we write B equal to A plus C by 2? What is the value of B? B is A plus C by 2. Yes. And from this result 2, can we write this D as a C square by B? Yes. Yes or no? Now we are using this both results. ये दोनों.
दिस वन एंड दिस वन यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो डी की वैल्यू है यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। डन। और ये दूसरी बी की वैल्यू इसको बाद में यूज करेंगे। डन। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ डी ओवर हियर। ये बी की वैल्यू है ना, ये रिप्लेस करेंगे बाद में। सो फर्स्ट वी आर यूजिंग दिस डी इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी इन आवर रिजल्ट 3 एंड देयरफॉर 2 बाई डी, तो ये होगा 2 अपॉन सी स्क्वायर, 2 अपॉन सी स्क्वायर, और ये बी ऊपर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ बी अपॉन सी स्क्वायर। डन है ना। 2 बाई डी, तो ये डी की जगह पर ये रिप्लेस किया हमने, तो सी स्क्वायर और बी ऊपर चला गया। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन सी, तो ये क्या होगा, दिस विल बी सी प्लस ई अपॉन सी ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा ई है। डन। सो सी प्लस ई अपॉन सी ई, इतना समझ में आया। नाउ रिप्लेसिंग, यहाँ पर हमने डी रिप्लेस किया। नाउ वी आर रिप्लेसिंग दिस बी। बी को कैसे रिप्लेस करेंगे, है ना, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 से रिप्लेस करेंगे। डन। सो ये 2 इंटू बी, तो ये 2 कट हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी ए प्लस सी होगा। सो ट्वाइस ऑफ बी इज ए प्लस सी, देयरफॉर दिस वन इज ए प्लस सी। डायरेक्ट यहाँ से देखो ट्वाइस ऑफ बी, तो ये रिजल्ट 1 था हमारा, ट्वाइस ऑफ बी ए प्लस सी, तो दिस वन इज ए प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ई अपॉन सी ई। डन। दोनों साइड सी स्क्वायर और ये सी, तो एक सी कट हो जाएगा, तो दिस विल बी ए प्लस सी, दिस विल बी ए प्लस सी अपॉन सी इक्वल टू सी प्लस ई अपॉन ई। डन। नाउ सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। therefore this one is a plus c into e equal to c plus e into c। एक्सपांशन करो, ए ई सी ई इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस सी ई, this c will be cut, so it's a c square equal to a e, है ना। what we are getting, c square equal to a e, ये तो हमें प्रूव करना था, c square equal to a e। देखो ये रहा c square equal to a, so what we can say, we can say that a, c and e are in gp, hence proof। is that clear? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। 21, here you have to find the sum of the following series up to the n term। 21, total 2 parts are there। First you have to find the sum of n terms, so given series is 5 plus, ये हमने कर दिया एक बार, 5 plus, है ना, सेम सम किया था, 5 plus 55 555 up to infinite। you have to find the sum of the n term of this given series। 21 के अंदर दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। so what you have to do, sum of n term, that is Sn, so let sum of n term, that will be equal to 5 plus 55 plus 555 plus up to n terms, है ना, n term तक एडिशन करना पड़ेगा। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बोलो किसी को याद है कैसे करते थे। हियर फर्स्ट वी आर टेकिंग 5 कॉमन,
So it's a 1 plus 11 plus 111 up to n terms. डन. उसके बाद क्या करते थे हम? 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे. सो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई और 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा. सो इट्स अ 9 प्लस 99 plus 999 plus that is up to n terms. Done. Now this is equal to 9. Now replacing this 9 with 9 को रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे 10 minus 1 plus 99 को 100 minus 1 plus 999 को 1000 minus 1, that is up to n terms. Done. Now ये जो टर्म है उसको सेपरेट करेंगे. दिस इज इक्वल टू 5/9 10 plus 100 ऐसे होगा 10 plus 100 plus 1000 plus up to n terms माइनस कॉमन तो ये 1 plus 1 plus 1 up to n term. n plus n plus n up to n term होगा. डन. अभी इसका एडिशन सबको आता है. दिस इज इक्वल टू 5/9. नाउ 10 plus 100 plus 1000 ये कौन सी सीरीज है? दिस इज वन जीपी. This is one GP in which first term A is equal to 10, common ratio R equal to 10, and number of terms are n. है ना? Common ratio 10 greater than 1. So क्या होगा इसका sum of n term? It's a R raised to n. It's a 10 raised to n minus R minus 1, 10 minus 1, 9. ये हो गया sum of n term minus 1 plus 1 plus 1 n टाइम तो होगा n, है ना? 1 का n टाइम एडिशन तो n होगा. डन. सिंप्लीफिकेशन करो, that will be your answer. So it's a 5/9. This will be 10/9, 10 raised to n minus 1 minus n. डन. ये आपका आंसर. सिंप्लीफाई करना है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो अगर करना है तो आपका आंसर आ गया 50/9 9 से 81. दिस विल बी 10 raised to n, 10 raised to n minus 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5n/9. This is sum of n term of the given series. Clear? है ना? ऐसे सम किए थे हमने पहले. हाँ. Second part of the question. Question number 21, second part. So here sum of n term, let's say it's a Sn. Sum of n term of given series is 0.6 plus 0.66 plus 0.666, है ना? 0 नहीं लिखा है लेकिन मैंने लिख दिया 0.666 up to कहाँ तक? n terms, है ना? up to n terms. सेम मेथड से जाना है. क्या करना है बोलो? 0.66 क्या कॉमन आएगा? 6 will be common. So this one is 0.1 plus 0.11 plus 0.111 up to n terms. उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9. So divide by 9, multiply by 9. So this will be 0.9 plus 0.99 plus 0.999 up to n terms.
डन। दिस इज इक्वल टू 6/9। 0.9 को डेसिमल पॉइंट रिमूव करे तो 9/10 लिखते हैं। 99 को 0.99 को 99 अपॉन 100, दिस विल बी 999 by 1000 प्लस कहाँ तक, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। डन। दिस इज इक्वल टू 6/9। देखो यहाँ पर मॉडिफिकेशन, कैन वी राइट दिस 9/10 एज ए 1 माइनस 1/10, है ना, क्योंकि 1 कॉमन आएगा सब में से। देखो प्लस 99 को 1 माइनस 1/100 और 100 को लिखे 10 स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1/1000, 1000 को लिखो 10 क्यूब, अप टू n टर्म्स। इज इट क्लियर? यहाँ से 1+1+1 और -n कॉमन लेके यहाँ पर आपको जीपी मिलेगी। दिस इज इक्वल टू 6/9, है ना। 1+1+1, माइक म्यूट कर दो। 1+1+1 अप टू n टाइम, अप टू n टर्म्स। ये एक फर्स्ट सीक्वेंस हो गई। माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टू n टर्म्स। डन। कटिंग करो यहाँ पर, 3 2 जा 3 3 जा, इट्स 2/3, 2/3। This one is 1+1+1 up to n term, so it's n minus. Now this one is again GP, in which first term a is 1/10, common ratio r is 1/10 and total number of terms are n. तो क्या होगा, a 1 minus r raised to n, 1 minus r raised to n, 1/10 raised to n, है ना। 1/10 raised to r, sorry 1 by r raised to n, so r is 1/10, so 1 raised to n upon 10 raised to n, so 1/10 raised to n upon 1 minus r, so 1 minus 1/10, ब्रैकेट ओवर। सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो। दिस वन इज 2/3 n माइनस, क्या होगा, ये 1/10 और ये 10 माइनस 9/10, है ना, तो 10 10 कट, so this will be 1/9, and this one is 1 minus 1/10 raised to n। डन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो फाइनल आंसर वो आएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। डन। तो अंदर एक्सपांशन करो, 2n 2n/3 माइनस 2/27 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज टू n। ये आपका फाइनल आंसर, सम ऑफ n टर्म्स। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ सीरीज, है ना। 20th टर्म, A20 फाइंड करना है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज इज 2 into 4, 2 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8 plus कहाँ तक, अप टू n टर्म्स।
For this series, we have to find the 20th term. So we can find the nth term. First, we have to find the nth term. So here, let's say nth term of the given series. First term, second term, third term, all terms are the multiplication of some numbers. So what is the nth term? So nth term will be multiplication of two numbers. Which two numbers? So it's the nth term of 2, 4, 6, nth term of series 2, 4, 6 up to infinite. Done. And nth term of which number? 4, 6, 8. 4, 6, 8. Is that clear or not? For this given series, nth term will be multiplication of two terms. Which two terms? Nth term of 2, 4, 6 up to infinite and nth term of 4, 6, 8 up to infinite. Is that clear or not? Now these two series are arithmetic progressions. So nth term will be, इसकी nth term क्या होगी? इट्स है ना, ये एपी है तो फर्स्ट टर्म 2 होगी. तो nth टर्म का फॉर्मूला कैसे होता है? nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो हियर फर्स्ट टर्म a is 2. It's a 2 plus nth term n minus 1 d common difference which is 2. 2 into here first term is 4. 4 plus n minus 1 into d common difference is 2. So this will be the nth term of given series. So nth term is, यहाँ पर क्या होगा? 2 plus 2n minus 2. This one is 4 plus 2n minus 2. Minus 2 plus 2 cut. So nth term is, here nth term is 2n. Here 2n plus 2. 2n plus 2. So this is our nth term. 2n into 2n plus 2. Multiplication करना पड़ेगा because we have to find the 20th term. So to find the 20th term, we have to put n equal to 20. है ना? Expansion करो या फिर डायरेक्ट लिख दो आंसर आपका a20 20th term. So this will be 2 into 20. This will be 2 into 20 plus 2. क्या होगा? 40 into 40 plus 2 42. So 40 into 42. 4 2 is 8. 4 4 is 16. 1680. So 20th term for the given series is 1680. Clear? है ना, एकदम सिंपल था. उसके बाद 23. क्वेश्चन नंबर 23. देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज. सम ऑफ n टर्म, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके लिखो, है ना, इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा. सो फॉर दिस 23 you have to find the sum of first n term. So let's say sum of first n term is Sn. This is equal to 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31. डन. प्लस करते करते लास्ट टर्म क्या होगी? nth टर्म होगी, है ना. हमने ऐसे लिख दिया कि सपोज इसकी nth टर्म लास्ट टर्म nth टर्म है, तो इसके लिए हमें सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है. तो आप देखो कि ये कोई एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, ये एक स्पेशल सीरीज है. तो इसका सम ऑफ n टर्म कैसे निकालेंगे? तो ये मैंने लास्ट में nth टर्म an लिख दिया, है ना. एक और स्टेप में लिखता हूँ सम ऑफ n टर्म दैट इज Sn. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 अप टू, अगर इसकी लास्ट टर्म an है तो इसकी जो आगे वाली टर्म होगी वो क्या होगी? a n माइनस 1 टर्म होगी. यस और नो? है ना. तो इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट नंबर 1. देखो, है ना, एक एक स्टेप आपको गौर से देखना है. ये गिवन था,
मैंने लास्ट टर्म ए एन लिख दी, उसके आगे वाली टर्म क्या होगी, ए एन माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन। इसके आगे और एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं, एस एन इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 अप टू, अगर लास्ट टर्म ए एन है तो उसके आगे वाली एक टर्म होगी ए एन माइनस वन। बोलो इसके आगे वाली एक और टर्म क्या होगी, ए एन माइनस टू ऐसे होगी। से दिस वन एज ए रिजल्ट नंबर 2। डन। नाउ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, नाउ नाउ आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस रिजल्ट 2 फ्रॉम रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 में से रिजल्ट 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये जो मैं फर्स्ट टर्म है ना, उसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, है ना। फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो ये दोनों रिजल्ट का सब्ट्रैक्शन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन होगा। तो सम ऑफ एन टर्म, ये तो पूरी जो सीक्वेंस है तो डिफाइन ही है, उसका एन टर्म और इसका एन टर्म ये दोनों सेम होंगे। और इसका मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 0। इफ वी सब्ट्रैक्ट वन, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो ये जो सम है वो तो सेम ही रहेगा, इक्वल। इसकी वैल्यू जो भी होगी वो इक्वल होगी। तो एस एन में से एस एन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के लिए फर्स्ट ये जो टर्म है ना उसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहा हूँ, ये जो सेकंड टर्म है ना उसमें से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से ये थर्ड टर्म में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ऐसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा देखो, 3 बचेगा प्लस, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में क्या बचेगा, वही आपको देखना है कि ऐसा क्यों करे। देखो लास्ट में सिंप्लीफिकेशन में आपका आंसर आएगा, है ना। तो 7 - 3, 7 - 3 तो क्या बचेगा, 4 प्लस 13 - 7 क्या बचेगा, 6। 21 - 13 क्या बचेगा, 8। तो अब देखो ये जो सम मिल रहा है ना, ये जो सीक्वेंस अप टू, अप टू देखो, पहली मैंने छोड़ दी है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। तो ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहाँ पर एक टर्म बचेगी, है ना। यहाँ पर एक छोड़ दिया तो इसकी भी एक लास्ट में टर्म बचेगी। और ये जो टर्म मिलेगी वो टोटल कितनी टर्म मिलेगी, अप टू n-1 टर्म्स मिलेगी, अप टू n-1 टर्म्स। और माइनस ये ए एन बचेगा। क्लियर। दोनों की एक एक टर्म का सब्ट्रैक्शन छोड़ रहे हैं, तो एन टर्म का सब्ट्रैक्शन करें तो ये जो सम मिलेगा, ये जो टर्म्स वो कितनी टर्म्स होगी, n-1 टर्म। ये समझ में आ गया, है ना। इसकी फर्स्ट टर्म छोड़ी थी तो ये भी बचेगी ना सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद सबका सब्ट्रैक्शन होगा। वो जो सीक्वेंस मिल रही है वो कैसे मिल रही है हमें, ऐसे मिल रही है, 4, उसके बाद सेकंड टर्म 6, 8 अप टू कहाँ तक, n-1 टर्म। ये समझ में आ गया। माइनस ए एन को भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ले ले तो क्या होगा, इट विल बी ए एन। सो ए एन इक्वल टू 3 प्लस अभी ये देखो ये कौन सी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस और नो। 4 + 6 + 8 कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। डन। और कितनी टर्म का सम करना है, n-1 टर्म। सो सम ऑफ n टर्म की जगह पर सम ऑफ n-1 टर्म। डन। तो क्या होगा फॉर्मूला, n-1/2, वहां पर n/2 था, n-1 2a, a is first term that is 4 प्लस n-1, लेकिन n की जगह पर n-1 है। सो n-1 तो क्या होगा, n-2 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2, ये 2। क्लियर है ना। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ऐसे होता है, n/2, रेफरेंस में लिखो तो अच्छा रहेगा, n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर n की जगह पर क्या है, n-1 है। क्लियर ना। और फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2 है। तो आपका यह सिंप्लीफिकेशन आएगा। डन। सो nth टर्म a n इक्वल टू 3 प्लस n-1/2, ये क्या होगा, 2 4 जा 8 प्लस 2n-4। so this will be an equal to 3 प्लस n-1/2, 8 - 4
4, 2n+4, और 2n+4 में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, है ना, ये होगा ना 2n+4। लिखो चलो 2n+4, ये 2 कॉमन ले लो तो ये 2 कट हो जाएगा। सो nth टर्म विल बी 3 प्लस n-1, 2 कॉमन, इट्स n+2। डन। सो nth टर्म विल बी 3 प्लस n-1 इंटू, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में n-1 इंटू n+2, n-1 इंटू n+2 करना पड़ेगा। क्या होगा, n² प्लस n-2। nth टर्म विल बी 3 प्लस n² प्लस n-2, so it's n² plus n, 3 minus 1, 1. So nth term will be n² plus n plus 1. This is nth term. क्वेश्चन क्या था देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। अभी तो हमें मिला nth टर्म। डन, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो nth टर्म के लिए क्या करते थे हम, सिग्मा वाला ऑपरेशन करेंगे। सो सम ऑफ n टर्म, है ना, सम ऑफ n टर्म, सिग्मा वाला ऑपरेशन करते हैं। सो सम ऑफ n टर्म विल बी सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n, ये हो गया a के। सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू, है ना, ये n इक्वल टू आएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू k, n इक्वल टू 1 टू k, और ये a k हमारा क्या होगा, k² प्लस k प्लस 1 होगा, k² प्लस k प्लस 1। सो दिस वन इज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू k² प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू k प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू k 1। फॉर्मूला क्या होता है k² का फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस k n प्लस 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 n टाइम n, सिंप्लीफिकेशन 6 टू n, यहाँ पर 1 है तो एलसीएम क्या आएगा 6 विल बी द एलसीएम। ऊपर एक्सपांशन करो, एक्सपांशन क्या होगा 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस दिस विल बी 2 3 जा 6, 3n² प्लस 3n प्लस 6n। डन। अपने n कॉमन ले लिया होता तो भी अच्छा होता, है ना, तो ये n को आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, है ना। तो क्या होगा, n को कॉमन ले लो, चलो ये n बार हो गया, ये n को एक कट कर दो तो ये n, ये 3, और यहाँ पर 6। डन। सो n कॉमन आ गया बार, so this one is 2n² n 2n प्लस n प्लस 3n, तो 6n, और ये 6 प्लस 3 प्लस 1 10, और नीचे बचा 6। देन ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन और नीचे कट हो जाएगा, इट्स n बाई 3, 2 कॉमन आ गया तो n² प्लस 3n प्लस 5 is the sum of total n terms of